السلام علیکم۔ آج سے ہم جو IT 430 کی پریپریشن شروع کر رہے ہیں، تو جو فائنل ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے لیسن نمبر 19 سے۔ تو اس کے پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جو HTTP ہوتا ہے وہ اسٹیٹ لیس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ پچھلی دفعہ جس نے کیا تھا وزٹ یہ پیج وہ کون تھا، تو اس کو یاد رکھوانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ پہلے بھی وزٹ کر چکا ہے اس پیج کو یا نہیں۔ تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی بھی پیج پہ جاتے ہیں تو اس پہ پہلا ہوتا ہے رجسٹریشن انفارمیشن، مطلب ہم اس پہ رجسٹر کرتے ہیں ویب سائٹ پہ، اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہم کوئی بھی آئٹم چوز کرتے ہیں جو ہم نے پرچیز کرنا ہوتا ہے، اور جو تیسرا پیج ہوتا ہے وہ کنفرم آرڈر کا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں پیجوں کو آپس میں لنک کرنے کے لیے جو ٹیکنیک کا یوز ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جا رہے ہیں تو سسٹم کو پتہ ہو کہ یہ کون سا بندہ آ رہا ہے اس پیج سے دوسرے پیج پہ۔ ویسے تو ہر پیج پہ الگ الگ جو ہے آپ وزٹ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون بندہ ہے، یہ پچھلے پیج پہ اس نے رجسٹر کر لیا ہے تب اس پیج پہ ہے یا ویسے اس پیج پہ آ گیا۔ تو اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اس میں ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں 4۔ پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ٹیمپریری فائل کی۔ اس میں ایک ID بنائی جاتی ہے جو کسٹمر کے نام سے، اور اس کو وہ الرٹ کھاتی جاتی ہے، تو وہ جس بھی پیج پہ جاتا ہے وہ ID اس کے ساتھ جاتی ہے، تو اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے، مطلب ID سے وہ ساری انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے پیج۔ اور وہ دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے کوکیز اسٹور کرنا، سیو کرنا، جو ہم اکثر جب کوئی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن آتا ہے کہ وہ کوکیز الاؤ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں الاؤ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو کسٹمر ہوتا ہے نا، جو کلائنٹ ہوتا ہے اس سائٹ پہ وہ کوکیز سیو کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کون وزٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ٹیکنیک ہے وہ ہے جو فارم ہم بناتے ہیں نا، اس میں ایک ہڈن کا وہ آپشن آ دیتا ہے، مطلب فارم کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہڈن کر دیتا ہے، یہ نیچے کوڈ بھی دیا گیا ہے انپٹ ٹائپ ہڈن۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جب اس پہ کلک کرتا ہے نا، کلائنٹ کسی بھی شارٹ پہ، مطلب اس اگر یہ بلیو کر رہا ہے شارٹ میں یا کوئی بھی اور چیز، تو اس کے ساتھ ایک ہڈن جو ہوتی ہے نا وہ ایک ویلیو مل جاتی ہے اس پیج کو، جس سے وہ ریفرنس لے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بندے نے سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ کوڈ دیا گیا، یہ کوڈ آپ ادھر سے کاپی کر کے اپنے اس پہ VS کوڈ پہ یہ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر اس پہ رن کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی صحیح سے، کیونکہ میں نے اب اگر رن کیا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اور جو آخری ٹیکنیک ہے 4 نمبر، وہ ہے کہ آپ سارا کچھ وہ ڈیٹا بیس میں سیو کر رہے ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے تو اس لیے یہ اتنی یوز نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو اوپر والی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں، کوکیز والی جو ٹیکنیک ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کی ٹائپس بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی جو ٹائپ بتائی گئی وہ ہے ون ٹائر آرکیٹیکچر۔ ون ٹائر آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کام ہوتا ہے وہ صرف ایک جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، سرور پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور باقی جو اس کے ساتھ کمپیوٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان پہ صرف ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اوپر پیراگراف میں بس سارے یہی بتایا گیا ہے۔ یہ اس امیج میں دکھایا گیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس میں یہ فائلز پڑی ہوتی ہیں، ویب جو فائل سرور ہوتا ہے نا اس میں یہ فائل پڑی ہوتی ہیں، اور جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا PC وغیرہ، وہ بس اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹو ٹائر آرکیٹیکچر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جو ویب پہ کلائنٹ ہوتا ہے وہ ریکویسٹ بھیج رہا ہوتا ہے، اور جو سرور ہوتا ہے وہ اس کو آگے سے رسپانس دے رہا ہوتا ہے۔ ادھر جو امیجز ہیں وہ بس 2 سرور کی دی گئی ہیں، لیکن یہ جو اوپر پیراگراف دیا گیا ہے اس میں 4 کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں جو تیسرا ہوتا ہے مطلب 3 ٹائر آرکیٹیکچر، اس میں ایک کلائنٹ ہوتا ہے، ایک ویب سرور ہوتا ہے اور ایک ڈیٹا بیس سرور ہوتا ہے۔ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ریکویسٹ بھیج رہا ہوتا ہے، اور جو ویب سرور ہوتا ہے وہ اس کو رسپانس دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو رسپانس اس کو دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں، اور جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہو رہی ہوتی ہے انفارمیشن۔ مطلب اس میں وہ 3 ہوتے ہیں۔ پہلے میں جو ون ٹائر آرکیٹیکچر ہے اس میں صرف ایک سسٹم ہوتا ہے نا،
वेब सर्वर वाला, और क्लाइंट पे सिर्फ शो हो रहा होता है। और जो टूल होता है उसमें उस पर दोनों काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट के पास भी डेटा होता है और जो होता है वेब सर्वर उसके पास भी होता है। और थ्री टायर में जो होता है वो क्लाइंट के पास भी होता है, वेब सर्वर के पास भी होता है, और डेटा बेस सर्वर पे भी डेटा होता है। और चौथा होता है फोर टायर आर्किटेक्चर। उसमें ये होता है कि बाकी ये तीनों जो बताया थर्ड में वही होते हैं, लेकिन फोर्थ में एक अलग से एक होता है। मतलब अगर आपने पेमेंट लेनी है किसी से तो वो पेमेंट के लिए एक अलग जो सर्वर यूज़ हो रहा होता है वो फोर टायर बन जाता है। उसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब जब हम पेज खोलते हैं अपने ब्राउज़र पे, कोई भी गूगल का पेज खोलते हैं, तो जब हम गूगल का एड्रेस लिखते हैं तो वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है। तो वेब सर्वर फिर उस हिसाब से हमें आगे से वो रिस्पॉन्स देता है, शो करवाता है गूगल। मतलब अगर हम किसी और चीज़ को लिखेंगे यूआरएल तो वो उस उसे ढूंढेगा वेब सर्वर में पड़ी होगी, तो वो हमें शो करवा देगा। और उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब सर्वर, तो वेब सर्वर जो है वो किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, तो उस ये तीन वेब सर्वर पे काम करता है। विंडोज सर्वर होता है, लिनक्स होता है और यूनिक्स होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो लिनक्स है, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो इस पैराग्राफ में बताई गई वो है कि वेब सर्वर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले जो बताया गया वो सर्वर्स हैं, और दूसरे जो बताया गया वो है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। जो इधर कॉमन यूज़ होते हैं वो है अपाची HTTP सर्वर, MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और है सन वन वेब सर्वर। ये वेब सर्वर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ना वो ये ऐड पे बताया गया कि वेब सर्वर के हार्डवेयर के बारे में। तो जिसके जो हार्डवेयर होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो ज़्यादा रैम वाले होते हैं और फास्ट प्रोसेसिंग होती है उनकी, और उनका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को एक ही वक्त में डील करना होता है। उसके बाद ये बताया गया परफॉर्मेंस ऑफ वेब सर्वर, कि वेब सर्वर की परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक होती है थ्रूपुट और एक होती है रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट क्या होता है कि एक वक्त में वो कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, और रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि वो कितनी जल्दी किसी रिक्वेस्ट का जवाब दे सकता है। इन दोनों को मिला के परफॉर्मेंस ऑफ वेब सर्वर मेजर की जाती है। उसके बाद ये नीचे बताया गया कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती हैं उनको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में डिवाइड किया जा सकता है, कि मतलब उनके बहुत ज़्यादा टायर्स बना सकते हैं। क्योंकि कुछ वेबसाइट होती हैं जिनमें हज़ारों के हिसाब से रिक्वेस्ट आ रही होती है एक टाइम में, और उनमें बहुत ज़्यादा डेट होता है, तो फिर वो दो तीन जो होते हैं वेब सर्वर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो फिर उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाती हैं, मतलब शॉपिंग के लिए अलग, जो ऑर्डर कंफर्म करने के लिए अलग, ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए अलग, इस अलग हर चीज़ के लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है। और उसके बाद इसमें ये बताया गया होस्टिंग की टाइप्स बताई गई हैं कि होस्टिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें एक ही सर्वर होता है और बहुत सारे लोग वही सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सस्ता होता है। और दूसरा होता है डेडिकेटेड होस्टिंग, इसमें एक पूरा जो सर्वर होता है ना वो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए होता है। ये फिर थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि एक कंपनी ने पूरा सर्वर लेना होता है। उसके बाद होता है को लोकेशन होस्टिंग, उसमें ये होता है कि सर्वर जो होता है वो कंपनी का अपना होता है, और ISP सिर्फ जगह और फैसिलिटीज देती है उस कंपनी को। बाकी जो सर्वर वगैरह होता है वो कंपनी ने खुद ही लेना होता है। उसके बाद होती है सेल्फ होस्टिंग, जो कंपनी अपना सर्वर खुद ही मैनेज करती है और खुद ही सारा संभालती है। तो ये चार टाइप्स बताई गई हैं होस्टिंग की। और इसमें ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के नीचे ये टॉपिक है। तो इसमें ये बताया गया कि ई कॉमर्स जो है सॉफ्टवेयर वो कैसे काम करते हैं। तो नॉर्मली उनकी तीन जो पेजेस होते हैं, एक होता है कैटलॉग डिस्प्ले, यहाँ पे वो शो हो रही होती है कि इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है जो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद होता है शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज़, कि मतलब अगर आप कोई चीज़ कार्ट में रख देते हैं तो वो सेव रहेगी आपकी, मतलब ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कि मतलब पेमेंट आप किस ज़रिए से करेंगे। और ये जो फर्स्ट है कैटलॉग डिस्प्ले, कैटलॉग की दो किस्में होती हैं, एक होता है स्टैटिक कैटलॉग और एक होता है डायनामिक कैटलॉग। जो स्टैटिक कैटलॉग होता है वो HTML में लिखा जाता है और मैनुअली चेंज करना पड़ता है, मतलब खुद से वो चेंज नहीं होता। और जो होता है डायनामिक कैटलॉग वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है और खुद ही अपडेट होता रहता है जैसे जैसे उस पर काम होता रहता है। तो
दूसरा बताया गया शॉपिंग कार्ट। इसमें ये होता है कि ये यूज़र जो डाटा सेलेक्ट जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है वो ये उसको सेव करता है और यूज़र के पास ऑप्शन होता है कि वो इसमें चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकता है। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है इसमें ये होता है कि ये पेमेंट प्रोसेस करता है, उसके बाद जो टैक्स उसके ऊपर लग रहा है या कोई डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं तो वो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके उसको यूज़र को बताता है कि आपके इतने चार्जेस बन गए हैं। उसके बाद कुछ एडवांस फीचर बताए गए हैं ई कॉमर्स के। एक है मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है कि जो दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब जो आपकी वेबसाइट है उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देता है, तो वो खुद ही जैसे आप ऑनलाइन जो पेमेंट कर देते हैं तो वो आपस में लिंक होते हैं कि कितने चार्जेस उसको करने हैं, तो आप जब उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वो ऑटो से आपके अकाउंट से पैसे इतने काट लेता है। उसके बाद है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि जो आपकी सारी एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं उनके साथ लिंक होना चाहिए। मतलब एक आपका ऑनलाइन स्टोर है और एक पीछे आपका इन्वेंट्री स्टोर है कि उस आपके पास कितनी तादाद में चीज़ें पड़ी हैं, तो अगर वो उधर ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा कि ये इधर ख़त्म हो गई है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर मतलब एक आपका होना चाहिए जिसके ज़रिए जो यूज़र है वो या आपके क्लाइंट है वो आपसे रब्ता कर सके। और वेब सर्वर पे सारा कुछ मौजूद होता है, मतलब ये आप कितनी कीमत में चीज़ बाय कर रहे हैं और कितनी कीमत में सेल कर रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी इन्फॉर्मेशन कि आपने किस किस बंदे को क्या क्या चीज़ डिलीवर किया उसकी सारी हिस्ट्री, और इससे आप ऑर्डर भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। और ये नीचे फिर दोबारा वही सारा कुछ बताया गया। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कैटलॉग की कितनी किस्में हैं, एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है, शॉपिंग कार्ट किस लिए होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, मिडलवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन क्या है, वेब सर्वर क्या है। तो बस ये यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया है। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।